نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت، تقوی، عافیت اور سلامتی سے رکھے۔ علم التجوید لیول 1 میں سبق نمبر 5 کو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے بہت پیاری حدیث مبارکہ۔ اس کے بعد حرکات میں سے ہم پیش یعنی رمح کی ادائیگی کی پریکٹس کریں گے، اور اس کے لیے ہم مشق دیکھیں گے۔ ترتیل کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ النازعات انشاءاللہ اس سورۃ کا آغاز کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کو یاد رکھنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت اور اس کو یاد رکھنے کے لیے اسے بار بار دہراتے رہو، کیونکہ قرآن انسان کے سینے سے اونٹ کے بندن سے چھوٹ جانے سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اہمیت اور اس کی حفاظت کا طریقہ بتایا ہے۔ قرآن کو صرف ایک مرتبہ یاد کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کو مسلسل دہرانا ضروری ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت اور دہرائی نہ کی جائے تو انسان اسے جلد بھول سکتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن اور قرآن سیکھنے والے دونوں کے لیے لازم ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت اور دہرائی کریں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ کہ قرآن کو روزانہ پڑھنا اور دہرانا چاہیے، اور یاد کیا ہوا سبق باقاعدگی سے مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن سے مسلسل تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور قرآن کی حفاظت کے لیے محنت اور پابندی ضروری ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں گے، روزانہ دہرائیں گے، جو اس کا سبق دیا ہوا اس کو باقاعدگی سے مضبوط کریں گے، پکا کریں گے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بھی مضبوط رکھیں گے، اور اس کو سیکھنے کے لیے خوب محنت کریں گے، پابندی کے ساتھ اس کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ، تو پھر قرآن کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ لیکن جب ہم اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جس طرح ایک اونٹ رسی توڑوا کر بھاگتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے قرآن پاک ہمارے سینے سے نکل جاتا ہے۔ تغفر اللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک سے تعلق مضبوط رکھے۔ آمین۔ جو شخص قرآن سے جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قرآن کے نور سے روشن فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی قرآن کے نور سے روشن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے اب دیکھتے ہیں حرکات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے زبر یعنی فتحہ کے بارے میں دیکھا تھا کہ فتحہ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ منہ کو اوپر کی طرف کھولیں گے۔ زیر یعنی کسرہ کی کیسے ادائیگی کی؟ نچلے جبڑے کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے، اور انگلش لیٹر ای کی ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پیش یعنی ضمہ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ پیش کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ او، بو، تو، ایسے نہیں کہنا او، بو، تو، یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ پیش یعنی ضمہ کی ادائیگی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ دیکھتے ہیں۔ با ضمہ بو، ہا کسرہ ہی، تا فتحہ تا، یعنی با پیش بو، ہا زیر ہی، تا زبر تا۔
बूहीता, ठीक है। इसको ऐसे नहीं पढ़ना बोहीता, बो नहीं कहना, बूहीता, बू, होंठों को मुकम्मल गोल करें, बूहीता। आगे ख्वाबूसा, ख्वाबूसा। अब यहाँ पे देखिए खौ, खौ क्या है, हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया कौन से हरूफ होते हैं, जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, 7 हरूफ, जिनका मजमुआ क्या है, खुस्सा ज़ाग़तिन क़िज़, ठीक है। तो अब देखें उसमें ख्वा आ रहा है ना, तो ख्वा को आप पुर पढ़ेंगे। हरूफ मुस्तालिया को पुर कैसे पढ़ा जाता है, क्या तरीक़ाकार है, ज़ुबान की जड़ को ऊपर तालु की जानिब उठाना, ये होता है हरूफ मुस्तालिया का मखरज, हरूफ मुस्तालिया को अदा करने का तरीका। ज़ुबान की जड़ क्या है, ये जो अंदर करके जो ज़ुबान का हिस्सा है, जो हमारा अंदर की तरफ है ज़ुबान, जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है, ज़ुबान की जड़, उसको हम ऊपर की जानिब उठाएंगे। ऊपर क्या होता है, तालु होता है। तो जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये हरफ ऑटोमेटिकली पुर अदा हो जाते हैं, जैसे कि खौ, खौ, ठीक है। आपने यहाँ पे जो गलती करते हैं वो क्या होती है कि हरूफ मुस्तालिया को पुर करने के लिए होंठों को गोल कर लेते हैं बच्चे, ऐसे नहीं करना, जैसे कि खो, खो, ऐसे नहीं करना, ये होंठ गोल हो रहे हैं। आपने ज़ुबान की जड़ को तालु की जानिब उठाना है, खो, खो, ठीक है, खो, ऐसे करके, खो, ख्वाबूसा, ठीक है। अगला देखते हैं कासूरा, कासूरा। अब काफ जो है ये बारीक है, कासूरा। जुगीला, 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 ई जो है आइन की आवाज़ हलक निकालनी है आपने, जुगीला। खुशीरा, खुशीरा, ठीक है, रा पुर पड़ी जाएगी, फतहा के साथ है ना, पुर पड़ी जाएगी, खुशीरा। बूहीता, ख्वाबूसा, कासूरा, जुगीला, खुशीरा, ठीक है। ऐसे इंशाल्लाह आपने पूरे पेज की प्रैक्टिस करनी है अपनी मोलिमात के साथ, और फिर उनको सबक सुनाना है इंशाल्लाह। उसके बाद हम तरतील के लेसन को देख लेते हैं। तरतील के लेसन में आज हम इंशाल्लाह सूरतुन नाज़ियात शुरू करने लगे हैं। सूरत नबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हुई। उसके क़वाइद में मैंने आपको क्या बताया था कि नून मुशद्दद का गुन्ना और मीम मुशद्दद का गुन्ना, यानी हाईएस्ट गुन्ना करना है। कैसे गुन्ना होगा, गुन्ना का क्या मतलब होता है कि आवाज़ को ज़्यादा देर तक नाक में ठहराना, ठीक है। वन, वन, ये जो वन ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नून की जो आवाज़ है, नून मुशद्दद का जो गुन्ना है, ये ज़्यादा देर के लिए आवाज़ में ठहरे, वाइब्रेशन रखनी है आपने अपने नाक में। गुन्ना का क्या मतलब होता है कि नाक में ज़्यादा देर के लिए वाइब्रेशन रखना, आवाज़ को ज़्यादा देर के लिए नाक में ठहराना। वन नाज़िआती, वन नाज़िआती ग़र्क़ा। अब यहाँ पे देखिए वन, वन नून मुशद्दद का गुन्ना, ठीक है। और हमने क्या देखा था सूरत नबा में, क्या सीखा था, फिर हमने ये देखा कि दो ज़बर की तनवीन वक्त की सूरत में एक अलिफ से बदल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी सूरत अन्नाज़ियात में देखिए ग़र्क़ा, अब क़ौ जो है इसमें देखिए कन, दो ज़बर की तनवीन है, वक्त की सूरत में क्या हो जाएगा, एक अलिफ से बदल जाएगी, ग़र्क़ा, ग़र्क़ा, ठीक है। नश्ता, नश्ता। अब क़ाफ जो है पुर हरूफ है, मैं एक तो पुर भी कर रही हूँ और दो ज़बर की तनवीन को वक्त की सूरत में एक अलिफ से बदल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने मज़ीद क्या देखा था, हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा की पहचान कराई थी आपको। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याई मद्दा। अलिफ मद्दा क्या होता है, हाली अलिफ से पहले ज़बर हो, हाली अलिफ, याद रखिएगा। अलिफ के ऊपर किसी किस्म की कोई अलामत ना हो, कोई हरकत ना हो, क्योंकि जब अलामत आ जाए जैसे कि जज़म या फिर कोई हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर, फिर क्या होता है, वो हमज़ा बन जाता है, वो अलिफ नहीं रहता। लिहाजा अलिफ क्या होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, एक सीधी लाइन। तो खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वह वाव मद्दा होती है, और याय साकिन से पहले ज़ेर हो तो उसको याय मद्दा कहते हैं। इनकी अदायगी के लिए मिक़दार कितनी होती है, एक अलिफ, यानी 2 काउंट। हरकत की मिक़दार कितनी होती है,
1 काउंट, आधा अलिफ। जबकि हरूफ मद्दा की मिकदार कितनी होती है? 2 काउंट, यानी 1 अलिफ। ये मिकदारें आपने याद रखनी है, ठीक है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि 1 काउंट कितना होता है। अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, एक फिंगर ओपन कीजिए। इस फिंगर को ओपन करने में जितना वक्त लगता है उतनी ही अदायगी 1 काउंट की होती है। जैसे कि आ, बा, ता, सा, ठीक है, ये 1 काउंट है। लेकिन जो हरूफ मदा होते हैं, यानी अलिफ मदा, वाव मदा और याय मदा, इनकी अदायगी 2 काउंट्स होती है, यानी 1 अलिफ। 2 काउंट्स मतलब जितनी देर आपको बंद मुट्ठी में से 2 फिंगर्स ओपन करने में लगती है, ठीक है, इसको 2 काउंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नजर आ रहा है आपको, आयत नंबर 6 में देखिए, अर्राजिफा, रॉ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? खाली अलिफ है और इससे पहले फतहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये अलिफ मदा हुआ। और अब मैंने इसको कितना खींचना है? 1 अलिफ के बराबर, रॉ। इसको रा ऐसे नहीं पढ़ना, फिर ये आधा अलिफ हो जाएगा, यानी 1 हरकत। तो इसको हमने 2 काउंट, 2 हरकत, यानी 1 अलिफ के बराबर खींचना है, रॉ, ठीक है। अर्राजिफा। आगे देख लेते हैं, आयत नंबर 7 में देखिए, तत्बाउ हर्वादिफा, अर्वादिफा, ये भी रॉ है, रॉ के अंदर अलिफ मदा है। वाजिफा, यहाँ पे देखिए वाव, यानी कि खाली अलिफ से पहले फतहा है, तो यहाँ पे भी क्या है? अलिफ मदा है। अलिफ मदा की बहुत सारी मिसालें होंगी। वाव मदा देख लेते हैं, यक़ूलूना, आयत नंबर 10 में देखिए, यक़ूलूना, तो ये कू और लू, ये क्या है? वाव मदा है। वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, तो ये क्या है? वाव मदा। तो इनको भी कितना खींचना है? 1 अलिफ, कू लू, इतना। इसको कूलू ऐसे नहीं पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। आधा अलिफ नहीं पढ़ना, 1 काउंट नहीं पढ़ना, बल्कि इनकी मिकदार याद रखनी है। 2 हरकत यानी 1 अलिफ, तो कू लू इतना पढ़ना है। ये वाव मदा होगी। और इसी तरह जो याय मदा है, उसकी यहाँ तो एग्जाम्पल नज़र नहीं आ रही, तो याय मदा के लिए आप जैसे अल्लज़ीना, ज़ीना, तो उसमें क्या है? या साकिन से पहले ज़ेर आ गई है, तो वो हमारी याय मदा होती है, ठीक है। अब आपने हरूफ मदा को भी ध्यान में रखते हुए इनकी अदायगी करनी है, ठीक है। अलिफ मदा, वाव मदा और याय मदा, ये तीनों हरूफ मदा होते हैं। आपको मैंने आयात में इनकी पहचान करा दी है। और उसके बाद इनकी अदायगी में क्या करना है? 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर इनको अदा करना है, ठीक है। एक और बात भी याद रखिए, जो मद्दे असली होते हैं, यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये भी हरूफ मदा के कायम मुकाम होते हैं। यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ये क्या होते हैं? ये हरूफ मदा के कायम मुकाम होते हैं। कायम मुकाम का क्या मतलब है? कायम मुकाम का मतलब है ये उन्हीं की तरह के होते हैं, यानी उनकी जगह पे आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी है, उसका ऑनर जो है वो किसी काम से बाहर जा रहा है, ठीक है। वो अपनी जगह पे किसी और मैनेजर, किसी और शख्स को मैनेजर बनाकर जा रहा है 1 हफ्ते की ड्यूटीज़ के लिए। अब वो जो मैनेजर है 1 हफ्ते के लिए फिर वो क्या करेगा? वो चेयरमैन की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, जो ऑनर की ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करेगा। कंपनी का जो ऑनर है, चेयरमैन है, वो 1 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहा है, तो उससे कंपनी का जो होल्ड है किसी और शख्स को देना है कि वो उसकी जगह पर उसकी जिम्मेदारियों को देखे। वो क्या करेगा? वो जो मैनेजर है वो मैनेजर को कहेगा कि आपने 1 महीने के लिए मेरी जगह पर कंपनी को देखना है, मेरी ड्यूटीज, मेरा चार्ज संभालना है। तो अब वो जो मैनेजर है वो अब फिर क्या हुआ? वो उसका कायम मुकाम हुआ, ऑनर का, चेयरमैन का, उसकी जगह पे काम कर रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारी खड़ी हरकत होती हैं, हरकत मद्दा जिनको बोलते हैं, जिस तरह हरूफ मद्दा 3 होते हैं, इसी तरह हरकत मद्दा भी 3 होते हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। ये जो हरकत मद्दा होती हैं ये हमारी हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होती हैं। यानी अब यहाँ पे आयत नंबर 9 में देखिए,
अबसारुहा, अबसारुहा। अब यहाँ पे सौ है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको मद्दे असली नज़र आ रही है, ठीक है, खड़ा ज़बर नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये मद्दे असली जो है ये खड़ी हरकत में से है, हरकत मद्दा में से है, और ये किसका कायम मुकाम हुआ, ये अलिफ मद्दा का कायम मुकाम हुआ, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे मद्दे असली ना हो तो कैसे लिखा जाएगा, स्वाद ज़बर अलिफ सौ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा। अब वो अलिफ नहीं लिखा गया ना, तो उसकी जगह क्या लिख दी है, मद्दे असली, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, तो याद रखिए खड़ा ज़बर, उल्टी पेश और खड़ी ज़ेर, ये तीनों हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपने एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींचना होता है। अब सौरूहा, सौरूहा, ठीक है, सौ, इसको अब सारूहा ऐसे नहीं पढ़ना, अब सौरूहा ऐसे पढ़ना। एक और कायदा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, आयत नंबर 6 में देखिए, अर्वाजिफा, फा, यहाँ पे देखिए गोल ता नजर आ रही है आपको। ये जो गोल ता जहाँ पे भी आएगी और उस पर वक्फ किया जाएगा, तो वक्फ की सूरत में गोल ता गोल हा यानी हाय साकना में बदल जाती है। ये कायदा आपने याद रखना, यानी कि गोल ता पढ़ी नहीं जाती। गोल ता के बहुत सारे नाम हैं, ताए मरबूता, तानीस की ता, ताए मुदव्विरा, लेकिन फ़िलहाल आप इसको गोल ता की तरह ही याद रखें, ठीक है। जब भी गोल ता आए और उस पर वक्फ किया जाए तो गोल ता नहीं पढ़ी जाती, ये हाय साकिना में बदल जाती है। हाय साकिना किसको कहते हैं, गोल हा और वो साकिन हो, ठीक है, इसमें बदल जाती है। अब इसकी अदायगी कैसे होगी, यानी आपने मुंह से एयर बाहर निकलती है, सांस बाहर निकलती है, फाह फाह, ठीक है, ऐसे अदायगी होगी। आपने इसको खींचना नहीं है, अर्वाजिफा ऐसे नहीं करना, वरना तो वो हरकत खींचने हो जाएगी जो लाफने जली में आ जाएगा। आपने फ़ौरन से ही अदा करना है, हरकत को भी अदा करना है फ़ौरन से, और गोल ता वक्त की सूरत में इसकी जो हा में कन्वर्जन होगी, तो आपने हा की अदायगी करते वक्त सांस को बाहर निकालना है, सांस प्रॉपर सुनाई देता है, ठीक है, ये अदायगी होगी। जैसे कि देखिए राजिफा, ठीक है। आगे देखिए आयत नंबर 7 में, अवादिफा, वाजिफा, इसमें आपने इस तरह से अदायगी करनी है इंशाअल्लाह, ठीक है। तरतील के लेसन सुनाते हुए आपने इनको आयत को अप्लाई करना है, इनको जहन नशीन कर लीजिए, और इंशाअल्लाह फिर आप मोलिमात के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और उनको प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे, कारी अहमद सुएद की रिकॉर्डिंग जो आपके साथ शेयर की जाती है, आपने उनकी रिकॉर्डिंग सुनकर प्रैक्टिस करना है अपने लेसन का, और फिर उसके बाद अपनी मोलिमात को अपना लेसन सुनाना है इंशाअल्लाह। अब लास्ट में असेसमेंट क्वेश्चन आपके साथ पूछे जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, आपने उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर करने हैं इंशाअल्लाह। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।